Where everyone demands your trust, we prefer to give you ours. Aryabhata Learning Forum Private Limited. Hello everyone, myself Abdulwais and welcome to Aryabhata YouTube channel. And yesterday only our re-NEET exam completed. So एक बार देखते हैं किस तरह जो है ना इसका क्वेश्चन पेपर था zoology और किस तरह उसमें से क्वेश्चंस आए. So टोटल क्वेश्चंस में से प्योर zoology क्वेश्चंस 43 आए. प्योर zoology. I am not considering here inheritance or molecular basis of inheritance and HGP, fingerprint technology and disorders, Mendelian disorders and other disorders here. Only pure part of the zoology. Out of those, what are the questions which actually takes the time more? ज़्यादा time खाने वाले जो questions थे वो थे statement questions, वो थे 4 questions. Total 4 questions थे. एंड करेक्ट ऑर्डर और सीक्वेंस क्वेश्चंस, जैसे कि ए बी सी डी देकर वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट और इनकरेक्ट. ओके, सो वैसे क्वेश्चन 7 आए थे. एंड मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस 2 आए थे. एंड असर्शन एंड रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस 4 आए थे, जो कि ज्यादातर 2 से 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट एवोल्यूशन से आए थे. एंड अगर से एवोल्यूशन से आए, ज्यादा असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आए थे. ठीक है, दैट मे बी होमोलॉगस ऑर्गन्स का हो या फिर किसी और. ओके, सो एंड टोटली इस बार दिस टाइम मेजर क्वेश्चंस केम फ्रॉम एवोल्यूशन से टोटल 7 क्वेश्चंस है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 7 मेजर. ओके, मेजर पार्ट इज टेकन बाय एवोल्यूशन से 7 क्वेश्चंस आए पूरे टोटली. ओके, व्हाट आर दोस क्वेश्चंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दिस इज द टोटल ओवरव्यू ऑफ द क्वेश्चन पेपर. आउट ऑफ 43, 4 plus 7 11 12 13 plus 4 17 out of 43, 17 questions are lengthy and we can say time taking. ये ज़्यादा टाइम खाने वाले क्वेश्चंस थे. सो आउट ऑफ 43 अगर से अपन 17 निकाल देंगे तो 43 minus 17 33 plus minus 7 means nearby 26 questions are direct questions, I think. Okay, these are the questions, direct questions, only one line questions. Okay, so here remaining questions are direct questions. So let us examine the from every unit how many questions they have asked and what are those questions. We will analyze that. So let us examine that. First unit, invertebrates, or we can say non-chordates and chordates. In non-chordates and chordates or animal kingdom, from animal kingdom, कितने क्वेश्चंस आए? टोटल क्वेश्चंस आर 3 क्वेश्चंस. व्हाट आर दोस? फर्स्ट वन इज फ्रॉम रेप्टिलिया and second one from chordate characters and the third one is radial symmetry. So first one is reptilia. He asked about the reptilia and its he give the definition of reptilia means creeping and crawling animals, right? And he asked that all the reptilian animals have 3 chambered heart. No, एक्सेप्शन इज देयर. दैट इज व्हाट इज द एक्सेप्शन? क्या है एक्सेप्शन? कहा है क्या है वहां पर? एक्सेप्शन ये है कि क्रोकोडिलिया एक एक्सेप्शन है. ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो रॉन्ग हो गया. ओके, राइट. नेक्स्ट वन, कॉर्डेट कैरेक्टर्स में सब करेक्ट दिया एंड प्रेजेंस ऑफ गिल्स होना चाहिए था, वहां पर आया एब्सेंस ऑफ गिल्स, इसलिए वो भी रॉन्ग हो गया. एंड नेक्स्ट वन, रेडियल सिमेट्री के बारे में भी दिया, सेम था वो भी क्वेश्चन. रेडियल सिमेट्री मींस व्हेनेवर वी कट फ्रॉम एनी एक्सिस देन इट विल गिव 2 equal halves. Okay, and he said that both the echinoderm adult and larva have radial symmetry. It's not correct. Okay, it's not correct because echinoderm adult have the radial symmetry, pentamerous radial symmetry, but larva have the bilaterally symmetrical. Okay, so that is how he asked the questions. And second one is structural organization.
Son, from structural organization, he asked the two questions. Two questions are very straight. In water, how actually frog respire? Frog किस तरह respire करती है पानी में? Through skin. Okay, बहुत easy questions था. And the second one is okay. And cranial nerves था. Second one था cranial nerves. How many cranial nerves does frog have? 10. So ये भी क्वेश्चन पूछा था. Only reptiles, aves and mammals have 12 pairs of cranial nerves. Okay. And the third one, breathing and exchange of gases से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है. Breathing and exchange of gases से, breathing से सिर्फ only one question he asked. Only one question. What is that? Sponges respire through diffusion. यही क्वेश्चन, बस डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर था. ठीक है. ओके, राइट. नेक्स्ट वन. एंड द थर्ड वन इज, फोर्थ वन इज सर्कुलेशन. सर्कुलेशन से टोटल क्वेश्चंस आए हैं 4 भी कंसिडर कर सकते या फिर 3 भी कर सकते, क्योंकि ही आस्क्ड अबाउट द IA, IB versus IA, IO. So it will not give O positive blood, O blood group. Okay. So ये एक रॉन्ग था. इसे हम जेनेटिक्स में भी कंसिडर कर सकते, हम इसे जो है ना सर्कुलेशन में भी कंसिडर कर सकते. एंड रिमेनिंग दैट फाइब्रिन एंड फाइब्रिनोजन के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा. एंड पूछा एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सा वाल्व होता है वो पूछा. एंड उसने पूछा नंबर ऑफ एसेयंस, नंबर ऑफ साइनो ऑरिकुलर नोड्स. ओके, कितने होते हैं? 70 to 75. ये तो 10th क्लास वाला बच्चा भी कर लेगा. ठीक है. इस तरह बहुत इजी क्वेश्चंस पूछा, बहुत इजी. एंड द फिफ्थ वन इज फ्रॉम एक्सक्रीशन. एक ही क्वेश्चन पूछा जिसपे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रही है. मेरा जहां तक ख्याल है कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए. ओके, वैसे प्रेजेंट से भी पूछा, पर वो हम उसे एंडोक्राइनोलॉजी में कंसिडर कर सकते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में कंसिडर कर सकते हैं. ये जो एक्सक्रीशन का क्वेश्चन पूछा है वो जो है ना सोडियम प्लस वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय DCT है. ओके, आंसर. इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, कंट्रोवर्सी भी चल रही है, इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे लगता है. और क्वेश्चन आया है सिर्फ एक एक्सक्रीशन से. एंड नेक्स्ट वन लोकोमोशन से. इस बार बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ क्वेश्चन आए हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट से. लोकोमोशन एंड मूवमेंट से आए हैं 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट. पहले पूछा है लोअर लिम्ब बोन्स, लोअर लिम्ब फीमर, पैटेला एंड टिबियोफिबुला. एंड द लास्ट वंस आर टार्सल्स, टार्सल्स के बाद मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स के फैलेंजेस आना चाहिए. इसमें से सीक्वेंस पूछा है, सही सीक्वेंस. ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज टोटल वर्टिब्रेस. टोटल वर्टिब्रेस आर एक्चुअली 26. इसी पे 2 क्वेश्चंस आ गए हैं. टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेस एंड द सीक्वेंस ऑफ वर्टिब्रेस. सीक्वेंस क्या होता है? CTLSC, CTLSC, CTLSC. सी से होता है सर्वाइकल, थोरासिक, लुम्बार, सैक्रल, कॉकिक्स. ओके. नंबर ऑफ वर्टिब्रे भी नहीं पूछा उसने, सीधा सीधा सीक्वेंस पूछा, नंबर ऑफ वर्टिब्रेस पूछा. ओके, राइट. नेक्स्ट वन और पूछा है स्पर्म मोटिलिटी के लिए. स्पर्म मोटिलिटी इट इज नॉट कम्स फ्रॉम, इट इज नॉट कंसिडर्ड इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकॉज ही मेंशन्ड इन NCERT in locomotion chapter. Okay, so in locomotion sperm motility is actually caused by flagellum. Okay, right. Next one, muscle. For the contraction of muscle what is required? It requires acetylcholine. Okay, so he asked the direct questions. So इस बार पहली बार एक फिजियोलॉजी से 5 क्वेश्चंस आना पहली बार हुआ है. लास्ट 4 क्वेश्चंस आते थे, इस बार जो है ना थोड़ा ज्यादा ही आ गए. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज न्यूरल कोऑर्डिनेशन. न्यूरल कोऑर्डिनेशन से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है. वो क्या पूछा है उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम. इसने उसमें दे दिया पेरिकार्डियम. एक्चुअली क्या क्या होते हैं? ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर. ड्यूरेबल ड्यूरा मैटर, मिडिल वेरी थिन एरेक्नॉइड मैटर एंड द लास्ट वन विच इज एक्चुअली नियर टू ब्रेन विच इज एक्चुअली पिया मैटर. ओके, सो ये था, उसने दे दिया. ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज एथ वन इज
केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन से आपको 3 क्वेश्चंस आए हैं पूरे। पहला तो पिट्यूटरी के बारे में पूछा उसने, पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफिसिस एंड दी न्यूरोहाइपोफिसिस के बारे में पूछा है। उसमें से असल क्वेश्चन जो था उसने कहा कि प्रोलैक्टिन इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, बट उसने कहा था रॉन्ग पिक करने के लिए, प्रोलैक्टिन इज नॉट सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी था उसमें, वो वाला रॉन्ग था। नेक्स्ट वन पैंक्रियास के बारे में पूछा था, उसमें से भी रॉन्ग पूछा था, अल्फा सेल्स प्रोड्यूस ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन, सो अल्फा सेल्स को इंसुलिन दिया था, वो वाला पिक करना था, रॉन्ग पिक करना था। एंड नेक्स्ट वन हार्मोन्स वगैरह दिया था, वासोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन, जिसको मैच द फॉलोइंग में करना था, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज 9th वन, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो अगर हम यहां पर कंसिडर करें, सो ब्रीथिंग से 1 क्वेश्चन आया, सर्कुलेशन से 3 4 हो गए, ये वाला 5 5 + 5 10 10 11 11 + 3 14 क्वेश्चन जो हर बार आते हैं उसी तरह आए हैं, बट ब्रीथिंग से सिर्फ 1 ही क्वेश्चन पूछा है और नर्वस सिस्टम से सिर्फ 1 ही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। एंड द रिमेनिंग आर ओके, बट लोकोमोशन से पहली बार इतने क्वेश्चंस आए हैं, पहली बार इतने क्वेश्चंस आए, इतने क्वेश्चंस लोकोमोशन से एक्चुअली नहीं आते, ठीक है, राइट। नेक्स्ट वन सेकेंड ईयर से, अगर सेकेंड ईयर का हम चेक करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इस बार क्वेश्चंस आए हैं 4। पहला पूछा है ओव्यूल के सराउंडिंग जो लेयर होता है वो जो है ना जोना पेलिसिडा होता है या जोना रेडिएटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, जोना पेलिसिडा। एंड नेक्स्ट वन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको जो है ना उसमें से था आंसर इन्फंडिबुलम, रिमेनिंग पार्ट्स आर एक्चुअली बिलोंग्स टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओनली, ओके। नेक्स्ट वन ह्यूमन प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं करता, ये पूछा था, वो था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड द नेक्स्ट वन ज्यादा हार्मोन कौन सा रिलीज करता है इन ओव्यूलेशन, वो पूछा था आफ्टर ओव्यूलेशन, तो वो था ईस्ट्रोजन, पर उसने दिया था वो होना था टेस्टोस्टेरोन, पर उसने दिया था ईस्ट्रोजन, ओके। ये 4 क्वेश्चंस आए थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपको क्वेश्चंस आए हैं 2। एक तो पूछा है इनफर्टिलिटी से, जो हर बार पूछता है, इनफर्टिलिटी से हर बार एक क्वेश्चन 100% आता है, वो क्वेश्चन आया है ICSI का, ओके, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो कि आना चाहिए, आया है, करेक्ट ही आया है। और एक आता है डिसीज से, वो भी आया है, जिस तरह आना था उसी तरह आया है डिसीज, पर ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी कर दिया है, कोई भी इससे पिक कर लेगा, ओके। ट्यूबरकुलोसिस आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये पूछा था। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस, कोई भी पहचान लेगा, ये तो इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया था ये, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज 11th वन, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन से अब के बार आए हैं पूरे 7 क्वेश्चंस, जिसमें से 2 से 3 थे असर्शन एंड रीजनिंग टाइप, ओके। सो फर्स्ट वन था ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बारे में, जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, जो आंसर था वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एंड नेक्स्ट वन होमोसेपियंस की ओरिजिन के बारे में था, जो कि ऑस्ट्रेलिया बताया था, जो कि अफ्रीका है, वो भी। और था अबिंगडोंग टॉर्टोइस के बारे में, ओके। अबिंगडोंग टॉर्टोइस ने क्या किया था, एफिशिएंट ग्रेजर होने की वजह से अबिंगडोंग टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट हो गए थे, एफिशिएंट ग्रेजर्स गोट्स थे, ओके, वो वाला क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट वन नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक नेचुरल सिलेक्शन के बारे में दिया था, स्टेबलाइजिंग एंड रिमेनिंग दिया था, जिसमें रॉन्ग पिक करना था, जो कि जेनेटिक ड्रिफ्ट था, ओके, ह्यूगो डे विलिस वाला, ओके। नेक्स्ट वन एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में जो 4 लिम्ब का था वो दिया था, 4 लिम्ब इज एक्चुअली होमोलॉगस ऑर्गन, उसके बारे में असर्शन भी सही था, रीजन भी सही था। एंड नेक्स्ट वन हार्डी विंगबर्ग के बारे में जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन दिया था, वो 0.1 A is 0.1 दिया था। फिर पूछा था व्हाट इज A and A,
क्या होता है वो, सीधा ए एंड ए करना था बस, और क्या है इसका, कैसा बनता है, ए ए, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस 2 स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए एंड प्लस स्मॉल ए स्क्वेयर। तो स्मॉल ए जो है उसको ए प्लस ए इंटू ए करना था, 0.1 इंटू 0.1 करेंगे तो सीधा आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। बस यही आंसर, डायरेक्ट आंसर था, जिसको देखकर बच्चे घबरा गए, बहुत लोगों ने गलत भी करके आया। ठीक है, राइट। एंड नेक्स्ट वन, एविडेंसेस से एक क्वेश्चन था। एविडेंसेस से क्वेश्चन ये था कि अर्नेस्ट शेकेल ने कहा था एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस गलत है। ओके, वो क्वेश्चन था। तो सबसे ज्यादा ये बार 7 क्वेश्चंस एवोल्यूशन ने ले गए, एंड सेकेंड लार्जेस्ट हम कह सकते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट ने ले गए। ओके, एंड नेक्स्ट वन इकोलॉजी। इकोलॉजी से 6 क्वेश्चंस आए हैं ये बार। इस बार इकोलॉजी से पूरे 6 क्वेश्चंस आए हैं, जो कि ज्यादा आते हैं। और बायोडाइवर्सिटी से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, इस बार आए हैं सिर्फ 1 क्वेश्चन। ओके, इकोलॉजी, इकोलॉजी से आए हैं 6 क्वेश्चन, जिसमें से पॉपुलेशन से आए हैं 4 क्वेश्चन आए हैं पॉपुलेशन से। पहला वाला था वो जो 10 मिलियन वाला जो क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, उसका बी भी सेम दिया और डी भी सेम दिया। बी माइनस डी अगर 0 हो गया तो देर इज नो चेंज। ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत करके आए। अगर बी माइनस डी सेम है, आफ्टर 10 जनरेशन हो या 20 जनरेशन, पॉपुलेशन साइज विल नॉट चेंज। एंड नेक्स्ट वन स्पीसीज इंटरेक्शन का दिया था, और एक क्वेश्चन algae एंड फंगीज क्या कहते हैं, लाइकन कहते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछा था। एंड नेक्स्ट वन लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड सिग्माइड ग्रोथ का पूछा था। लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड सिग्माइड ग्रोथ के बारे में पूछा था। ओके, सो जो लॉजिस्टिक होता है एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। ओके, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है वो फाइनाइट होता है, उसने असर्शन एंड रीजनिंग पूछा था, वो वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। ओके, एंड नेक्स्ट वन 13th वन, इसमें ही इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम से इस बार आए हैं 2 क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंज्यूमर पूछा था, हर्बीवोर से। ओके, एंड ये पूछा था कि 10% रूल भी पूछ लिया उसने। वो पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट और रॉन्ग सीक्वेंस में पूछना था। 10% लॉ के बारे में भी पूछ लिया उसने, 10% लॉ के बारे में। एंड द नेक्स्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से अमेजन रेन फॉरेस्ट का स्पीशीज का पूछा था। ओके, बायोडाइवर्सिटी में पूछा था अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, सो ओवरऑल में सबसे ज्यादा एवोल्यूशन ने 7 लिए क्वेश्चंस, एंड बायोडाइवर्सिटी ने 6 लिए, एंड लोकोमोशन ने 5 लिए। ओके, सो क्वेश्चन पेपर बहुत बैलेंस्ड था, पर जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं था। स्टैंडर्ड्स बहुत कम थे। हो सकता है एनटीए डर गया होगा कि कहीं क्वेश्चन पेपर हार्ड दे देंगे तो फिर कुछ हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन पेपर का जो था रेंज वो है इजी था। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर एंड इट्स एनालिसिस। टोटल क्वेश्चंस हमने देखे, जो कि स्टेटमेंट क्वेश्चंस 4 थे, करेक्ट ऑर्डर और सीक्वेंस वाले क्वेश्चन 7 थे, मैच द फॉलोइंग 2 थे, एंड असर्शन एंड रीजनिंग 4 थे। एंड ये सब छोड़ देंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 26 डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, वन लाइनर थे, जो कि में 3 वाला जो नीट था उसमें 1 लाइनर क्वेश्चंस ही नहीं नजर आ रहे थे, लेंथी था बहुत क्वेश्चन पेपर। और जो पढ़े हुए बच्चे थे उनको बहुत फायदा हो रहा था, और जो नहीं पढ़े हुए थे उनको थोड़ा स्ट्रगल हो रहे थे। अभी जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन पेपर ओके था, एंड इतना इजी नहीं देना चाहिए। ठीक है, एंड जहां से आना चाहिए था क्वेश्चंस वहां से आए हैं, पर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से बहुत कम आए हैं, सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है। एंड इकोलॉजी से हम जो हर बार एक्सपेक्ट करते हैं उससे थोड़ा कम क्वेश्चंस आए हैं। एंड रिमेनिंग जो बॉटनी एंड जोलॉजी मिलकर होता है, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस या फिर इनहेरिटेंस से जो है ना जो क्वेश्चंस आते हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम का क्वेश्चन भी, वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है।
ओके, सो क्वेश्चन पेपर वेल बैलेंस्ड था, बॉटनी और जायोलॉजी बोथ बैलेंस्ड था, एंड यूनिट से भी सही क्वेश्चंस लिए पर बहुत इजी क्वेश्चंस लिए थे, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन और आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो एक्सटेंसिव बैच के लिए या फिर इवनिंग बैचेस के लिए आर्यभट्टा कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं।